morning everyone. In the last class, I did talk about the slope of a line and then the idea for a line passing through 2 points और उसमें slope निकालना भी सीखा था. Now I am just covering the basic things which you already have done in class 9 about the various forms of equations of lines. Quick check. The coordinate axis. So if I consider a line say parallel to x-axis, so the equation of this line is y is equal to say a, और ये हो गया से y is equal to minus a, और distance is say a unit. This is the origin. And the equation अगर मैं line ले लेता हूँ से parallel to y-axis, so this has got the equation x is equal to a. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, 0 हो जाएगा. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, a हो जाएगा. Like that. So this is what you already have done in class 9. Equation of x-axis क्या बोलेंगे? Equation of x-axis. Simple question है MCQ में. Y is 0. Y equal to 0. And equation of y-axis x is 0. X equal to 0. अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए. Equation of horizontal line lying below the x-axis and at a distance of a from it. Equation of horizontal line. तो horizontal मतलब ऐसे बात हुई है. Lying below x-axis and at a distance of a units. What is the equation of this line? Y is equal to a. 1 plus minus a. Yes, consider this. Based on this concept, एक simple question मैं पूछ रहा हूँ. Find the equations of lines. Find equations of lines parallel to axis, and passing through -3, 5. Yes. Equations of lines. एक से ज्यादा आंसर ही होगा डेफिनेटली. Parallel to axis and passing through -3, 5. तो -3, 5 roughly कहाँ होगा? -3 and say 5. तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं एक इस लाइन की इक्वेशन की और एक हो रही है इस लाइन की इक्वेशन. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? y equal to 5. 5. और इस लाइन की X equal to b. तो ये और ये आपका आंसर होगा. That's it. Now this is very important type of question. Find the value of k, for which the line k minus 3 into x plus k square minus 4 into y plus k minus 1 into k minus 6 equal to 0. A part parallel to x-axis, B part
parallel to y-axis, C part passing through origin. Very simple path कर दिया. This is the equation of a line. I'm sure everyone is clear. ये किस फॉर्म में है? ax plus by plus c is equal to 0. तो any line जैसे 2x minus 3y is 7 वैसे ही उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. अब फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं पैरेलल टू x एक्सिस. Any line which is parallel to x axis ये होगी. और याद रखिए इसकी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होती है. y होता है. इन अदर वर्ड x नहीं होता है. x नहीं होगा. कब नहीं होगा? Then clearly this is 0. ये x तो 0 नहीं हो सकता, but coefficient can be 0. Your required answer. पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब क्या हो गया? ऐसी लाइन, और ये लाइन होती है x इज इक्वल टू a की फॉर्म में. x होगा मतलब y नहीं होगा, और दिस इज 0. व्हाट इज द आंसर? तो एज एक्सपेक्टेड अभी एक आंसर आया था, 2 बोला था, वो इनकम्प्लीट है. ठीक है, याद रखिए प्लस माइनस कॉमन गलती हो जाती है. What about third part? Passing through origin. 0,0 लाई करेगा. x को 0 कर दो, y को 0 कर दो. Clearly, a minus 1 into k minus 6 0 बचेगा, और k is either 1 or 6. Answer. Everyone in the online class, please mark your attendance. कंसिडर दिस इक्वेशन ऑफ लाइन की अब हम बात शुरू कर चुके हैं. ये कंसेप्ट था 9th क्लास बेस्ड. अब जो हम बात करेंगे वो स्लोप से देखो कैसे रिलेटेड है. वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन. तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या मतलब है? इसमें आपको 2 चीजें गिवन है. एक, कैसी भी लाइन जा रही है, इसके ऊपर एक पॉइंट पता है मुझे, से x1 y1, ये गिवन है. स्लोप, मुझे इस लाइन का स्लोप भी गिवन है. तो 2 थिंग्स आर नोन टू मी. गेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. तो वन नीड टू थिंक लॉजिकली. जनरली प्रूफ्स रिक्वायर्ड नहीं है, बट एक क्विक अप्रोच बता देता हूं कि जनरल प्रूफ कैसे कर सकते हैं. एनी पॉइंट ऑन दिस px1, 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप क्या हो जाएगा इस लाइन का? 2 पॉइंट फॉर्म से y2 minus y1 upon x2 minus x1, और ये तो किसके m के इक्वल है. क्रॉस मल्टीप्लाई, y minus y1 is m into x minus x1. Hence the formula. ये मेरे लिए ये फॉर्मूला है. x1 y1 पासिंग वाला पॉइंट हो गया, और m मतलब स्लोप गिवन.
अब आप लिंक करना शुरू कीजिए। स्लोप गिवन का मतलब क्या हो गया, इस लाइन ने अगर ये एंगल बनाया होता थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आपको एक्चुअली tan थीटा एक्चुअल में गिवन है, तो थीटा की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, बट वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो मेक अ नोट ऑफ दिस फॉर्मूला फॉलोड बाय डायरेक्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे डायग्राम बना के कर देता हूं। पासिंग थ्रू 4 3 एंड स्लोप इज 2। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, प्योर रफ स्केच विल वर्क फाइन। y माइनस y1, ये y1 हो गया, स्लोप m इंटू x माइनस x1 x माइनस, दैट्स इट। इसके बाद तो बस ओपन दी ब्रैकेट and rearrange the terms. 2x minus y is 5. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म। अगेन वेरी सिंपल। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या हो गया, लाइन के ऊपर आपको कहीं पर भी 2 पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 एंड सर इसके अंदर तो हम m की वैल्यू वैसे करके लिख देंगे ना। यस, 2 पॉइंट्स ये बनना है चेक करिए इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, तो y माइनस y1 इज m इंटू x माइनस x1 हो गई पिछले वाले आर्टिकल से। अब n क्या है, इस लाइन का स्लोप, और 2 पॉइंट से हम स्लोप निकालना पहले ही सीख चुके हैं। क्या होता है m का फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू ये एज इट इज, हेंस द फॉर्मूला। तो रटना है, समझना है, वो आपकी चॉइस है, बट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एक्चुअली क्यों ये हो रहा है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस फॉर्मूला। चलिए इस लाइन की इक्वेशन बताइए, -1,4 और 3,7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दीस 2 पॉइंट्स। ऑब्वियसली ये हो गया x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। आप इसे x1 y1 x2 y2 कह सकते हो, आपकी चॉइस है, प्रेफरेबली हम ऑर्डर में ही लेते हैं। प्लीज सॉल्व इट एवरीवन। Apply the direct formula. ये रहा y minus y1 ये रहा 4 is
स्लोप माने y2 माइनस y1 हो गया अपॉन 3 माइनस ऑफ -1 राइट इनटू x माइनस x1 x माइनस x1 आ गया। बस अब तो y माइनस 4 इज 3/4 इंटू x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इधर आ गया 4y माइनस 16 3x plus 3 and rearrange 3x minus 4y plus 19 is 0. Please match it. Even the same idea can be extended. Say a triangle is given. आपको उसकी तीनों वर्टिसेस पता है, ये given है, ये ट्राइंगल है। The vertices are -1, 8, 4, -2, -5, -3. So I can go on adding many parts to this question. मान लीजिए मैंने आपसे क्या क्या पूछा। A part, find the equation of BC, find length of median through A, and चलिए पहले भी दो पार्ट्स पे फोकस करते हैं। वर्टिसेस है -1, 8, 4, -2, -5, -3। सर 2 पॉइंट्स गिवन है, उसकी इक्वेशन निकल जाएगी हमारे फॉर्मूले से, और उसके बाद नेक्स्ट सर बोर्ड क्लियर नहीं है। Yes, of course, equation of BC तो डायरेक्ट फार्मूला, इक्वेशन ऑफ BC पूछा है, तो मेरा फोकस सिर्फ इन दोनों वर्टिसेस इन पॉइंट्स पर हो गया, और अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या, y minus y1 is slope into y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। अब ये विजुअल के साथ वर्क करेगा, फॉर्मूला माइंड में प्रिंट हो गया और विजुअल के साथ आप ये डायरेक्ट लिख पाएंगे इन अ सिंगल लाइन। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। बस इसके बाद तो ये y plus 2 is -3 plus 2 -1/-9 हो गया into x minus 4 minus से minus cancel cross multiply rearrange, so that now I am not going to solve। B part 10th में ही किया हुआ है, मीडियन पूछा है थ्रू ए। सबसे पहला सर मिड पॉइंट निकाल लेंगे, फिर मिड पॉइंट से 2 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे तो उनकी इक्वेशन निकाल के उसमें हम पुट कर देंगे और हो जाएगा। बिल्कुल, मिड पॉइंट निकाला, ये डी BC का कितना आ रहा है, -1/2 -5/2 x1 plus x2/2 y1 plus y2/2 मिड पॉइंट फार्मूला। और फिर मीडियन का मतलब मैंने आपसे ये लेंथ पूछा, तो दैट यू कैन इजीली फाइंड। आपसे इक्वेशन ऑफ मीडियन भी पूछी जा सकती थी, तो फिर 2 पॉइंट मिल गए। आई कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन आल्सो। चलिए लॉजिकल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, व्हाट इज द एंगल P? थीटा इसको कहते हैं। हाउ विल यू फाइंड दिस थर्ड पार्ट, फाइंड थीटा।
Yes. सर हम Right. दोनों लाइंस की अगर स्लोप निकाल लेंगे तो tan थीटा लगा सकते हैं। इसका स्लोप निकाल दो, इसे मैं m1 कहने वाला हूं। इसका स्लोप निकाल दिया BC का, m2 हो गया। और फार्मूला क्या था, tan थीटा m1 m1 माइनस माइनस m2 1 माइनस m1 m2। इस केस में m1 क्या है, here m1 will be AB का स्लोप की बात हो रही है, -2 - 8 upon 4 plus 1 -10/5 which is -2। m2 कितना है, सो विद प्रैक्टिस ये क्विकली आप लिख सकते हैं, डायरेक्टली आना चाहिए। बस आपको फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना है, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। I hope it is clear to all. Yes sir। Consider this question, इन्हीं चीजों की एक्सटेंशन है। Find the equation of perpendicular bisector। Perpendicular bisector इसका of the line segment joining 2, 3 and 6 minus 5। So this term is important, perpendicular bisector। दो चीजें हैं, बाइसेक्ट कर रही है और परपेंडिकुलर भी है। पॉइंट ये गिवन है ए एंड बी, रफ स्केच। सर उनकी स्लोप का सम -1 होएगा एक। बिल्कुल ठीक, ये ए बी है। पहली बात, परपेंडिकुलर कहाँ है, तो मिड पॉइंट से वो लाइन जा रही है, और परपेंडिकुलर भी है। चलो ये रहा। तो आई एम इंटरेस्टेड इन इक्वेशन ऑफ से सी डी, इसको डी कर देते हैं। तो एक्चुअल में वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सी डी। सबसे पहले सी निकल गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला 4, -1। स्लोप ऑफ ए बी कितना है, check it out। a b का स्लोप y2 - y1 upon x2 - x1 -8/4 -2। इससे स्लोप ऑफ CD कितना आ गया, नहीं, थोड़ी सी गलती है, 1/2। 1/2। क्या करते हैं भाई, प्रोडक्ट जो है दोनों के स्लोप का -1 होना चाहिए। इसका रेसिप्रोकल और साइन बदल दो, डायरेक्ट आ गया 1/2। इसका मतलब मुझे CD लाइन का स्लोप भी मिल गया एंड पॉइंट भी मिल गया। CD लाइन के ऊपर C लाइन भी कर रहा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लग गई, दो चीजें गिवन है। तो फाइनली इक्वेशन विल बी y minus y1 is m into x minus x। Rearrange, simplify your answer। सर नेक्स्ट चैप्टर आप सर्कल्स कराओगे? सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर लिमिट्स। सर लिमिट्स, ओके सर। Yes, of course।
यस, मैं दे रहा हूं, किसी को प्रॉब्लम है जाकर कंप्लीट हो, ठीक है। सीआरपीएफ स्कूल देखो, कहीं भी किसी को ऑब्जेक्शन है यू कैन ऑलवेज लॉन्च द कंप्लीट, राइट। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल आएगा और जो स्कूल में जिस तरह से पढ़ाया गया है वो बिल्कुल आएगा। पीडीएफ इसलिए ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है, बाकी जो चीजें डिलीट हुई है वो सब कर दिया गया है, बट ट्रिग्नोमेट्री विल बी इन दी टर्म 1 ओनली। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अनदर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। And that is your slope intercept form. Slope intercept form. Check this out. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में एक टर्म पहले आ रही है, स्लोप तो सबको पता है, m हो गया। व्हाट इज द इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट के केस में देखिए क्या हो जाता है, मान लीजिए देयर इज एनी लाइन, इस लाइन ने यहां पर डिस्टेंस कट करा a यूनिट और यहां कट किया b यूनिट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, b हो जाएंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इस लाइन ने x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनाया है, a यूनिट्स, कितनी लेंथ कट करी है, तो इंटरसेप्ट इज द लेंथ कट बाय दिस लाइन ऑन x एक्सिस, वो लेंथ है a यूनिट, और इसका y इंटरसेप्ट कितना हो गया, b यूनिट्स। तो अब आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको लाइन का स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट जो है वो विद y एक्सिस गिवन। अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। मान लीजिए आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है और लाइन जो मेरी जा रही है इसने यहां पर ये c यूनिट कट करा। जनरली वैसे हम a लेते हैं या b लेते हैं, देयर इज अ रीजन, नोटेशन जो कि फिक्स हो जाती है, और इस लाइन का स्लोप मुझे पता है, इस लाइन का इंटरसेप्ट कितना है y एक्सिस पर, c यूनिट्स। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y is equal to mx plus c. mx plus c। The other form which is actually not required in journal, ये तो मैंने लिया है x एक्सिस के ऊपर और सॉरी y एक्सिस पे। इन केस मान लो लाइन ये जा रही है और उसने यहाँ पर कट कर दिया d यूनिट, स्लोप इस लाइन का मुझे पता है m, तब इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू m इंटू x माइनस d, मतलब mx minus m। बट यू विल फाइंड दैट 99% तो क्लियर है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं, एनसीईआरटी में भी एक भी नहीं है, वी जनरली डू नॉट टॉक अबाउट दिस फॉर्म। रेफरेंस हमेशा y एक्सिस के साथ रहेगा फॉर दिस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बट वन शुड बी अवेयर ऑफ दिस फार्मूला। ये नोट फिर भी कर लीजिए, सिंपल चीज है, बस याद करना है। सर यस सर, अगर हम जो हमारा वो है y इंटरसेप्ट है, b है हमारा, अगर हम उस पॉइंट के हिसाब से देखें जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है हमारी स्लोप, तो उसके रेफरेंस में y हमारा y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। See the idea is intercept, पहली बात मान लो मैंने ये लाइन बनाई थी, लेट्स से लाइन ये जा रही है, अब इस केस में y इंटरसेप्ट ये लेंथ तो c यूनिट ही होगी, यस सर, क्योंकि वो इस पॉइंट से पास कर गया है
तो वहां वो सी की जगह यहाँ माइनस सी बन जाएगा लॉजिकली, दैट विल बी द ओनली डिफरेंस। ओके सर। तो क्वेश्चंस आएंगे अभी। Let's begin with a direct question. पहले simple application of this formula. Everyone find equation of line. Slope is half and y-intercept is -5/4. यही क्वेश्चन आप मिस्टेक पूछ रहे थे, कोई बात हो रही है? अगर नेगेटिव चलो आ गया, नीचे से लाइन जा रही है, हार्डली मैटर्स। m और ये क्या है, y के साथ जो भी बना इंटरसेप्ट दैट इज c। तो फार्मूला यही है, y इक्वल टू mx प्लस c। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, टेक द LCM एंड सिंप्लीफाई। यस सर। चलिए 1 मिनट ब्रेक ओनली। मास्क बंद करो, बाकी दिक्कत नहीं है। Very important formula. चलिए, yes. Slope of a line ax plus by plus c equal to 0. डायरेक्ट याद कर लीजिए, वो होता है माइनस a by b. That is minus टाइम coefficient of x upon coefficient of y. So please make a note of this very important rule. Consider the application. Show that lines, एक लाइन है और दूसरी है 2x plus 3y plus 7 is 0 are perpendicular to each other. इसी क्वेश्चन को रीफ्रेम कर दिया एमसीक्यू में, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, सो ऑन, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। एनीवे, फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या होगा?
minus coefficient of x upon minus coefficient 18. y minus 18. तो 27 by 18 3 पे गया 9 by अच्छा सॉरी 9 पे कर देते 3 by 2. सेकेंड लाइन का स्लोप देखते ही पता है. अब यहाँ पर m2 माइनस x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट सब अपेंडिकुलर. m1 m2. अब पता है जैसे मैंने इन वैल्यूज को देखा तो आई विल गो फॉर देयर प्रोडक्ट एंड इट इज क्लियरली -1. hence the lines are perpendicular. Important question. Find the angle between the lines √3x plus y equal to 1 and x plus √3y equal to 1. चलिए करिए आप सभी. I am waiting for 2 minutes. बना रहे इसका m1 क्या हुआ -√3 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. m2 कितना आ गया -1/√3. अब ये हमें क्लियर होना चाहिए जब मैं एंगल्स की बात कर रहा हूं तो मैंने अगर एंगल थीटा assume किया तो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फार्मूला और दिस सिंपली मींस आई नीड m1 एंड m2. इसीलिए आपको ये डायरेक्ट रूल बता दिया है. अप्लाई दैट. बस इसके बाद तो वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करनी है. m1 माइनस m2 माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 1 प्लस m1 into m2. Take the LCM. -3 plus 1 कितना आ गया -2 by √3 अपॉन ये √3 से √3 कैंसल 1 plus 1 अपॉन 1 बेसिकली बच गया and this is equal to -2 by √3 into 1 by 2 का mod. 2 से 2 कैंसल. mod का मतलब सिंपली 1 by √3 tan theta 1 by √3 30 डिग्री 68 डिग्री और नहीं 30 डिग्री. 1 by √3 कब होता है 30 डिग्री. अब आप खुद सोचिए आपने एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करा सब कुछ सही सोच लिया और इसको देखकर आपने 1/√3 को लगा दिया 60 डिग्री. राइट. तो वहां 1 मार्कर एमसीक्यू में इधर 1 और 0 रहेगा. याद रखिए मेथड इट इज गुड यू आर शोइंग दैट बट एट द एंड ओनली द करेक्ट आंसर कैरीज द मार्क्स. बट आई हैव सीन इन द बोर्ड में आप जैसे पैटर्न वहां का 12 के अलग होते हैं. But generally, when there was a time जब MCQ आते थे, अभी भी आते रहे हैं MCQ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस केस में लिबर्टी दी गई. स्टूडेंट ने MCQ करा, गलत आंसर मार्क करा, बट उस केस में उसने बस सॉल्व करा, यहाँ तक सही है. तो बोर्ड तक में 12th में तो हुआ है कि हाफ मार्क उसका दे दिया है. बट वो केस था जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात हो रही थी. मतलब मान लो फिल इन द ब्लैंक है या वन वर्ड आंसर है.
स्पेसिफिकली एमसीक्यू में ऐसा नहीं होता है, बट आई वुड हाईली रिकमेंड थोड़ा सा जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो बिल्कुल साथ में रखेंगे, और आपको जो एग्जाम जो होने वाला है उसमें मोस्ट लाइकली यू विल बी गेटिंग दी OMR शीट। तो OMR शीट के ऊपर आप पेपर को अटेंड करना कर रहे हैं यहाँ, एंड द पेपर इज ऑफलाइन एज ऑफ नाउ। वही है, फिर मैं पहले बता चुका हूँ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में वहाँ है, वी कैन नॉट गो अवे विद दैट। तो अगर वहाँ ये रहेगा तो ऑफ कोर्स फिर वो ऑनलाइन में ही रहेगा, बट उस केस में भी आपको साथ में सॉल्व जो कर रहे हैं वो शीट अटैच करनी है, वो यू विल बी गाइडेड अकॉर्डिंगली। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एवरीवन इन द ऑनलाइन क्लास, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। Thank you, sir. Have a good day, sir. And then you can leave the class. चलिए, प्लीज लीव द क्लास। ऑब्जेक्टिव 1 मार्कर में ही रहेगा। वेरी सून आई विल गोइंग टू शेयर द सैंपल पेपर। 1 वीक के से कम में आपको सैंपल पेपर मिल जाएगा, तो एक बेसिक आइडिया लगेगा।